Welcome to all. Introduction of Statistics. This is Module 3. Introduction of Statistics का ये third module है. In previous two modules we have learned what is economics, what is the economic problem, and in second module we have learned statistics in singular sense, plural sense, stages of statistics and characteristics of statistics. In this module we will cover what are the limitations of statistics, what are the importance of statistics, and why people do not have trust on statistical data. So let's start. Importance of statistics in economics. Statistics is very important in economics. It helps in quantitative expression of economic problem. There are different economic problems in our economy like unemployment, high population growth, poverty, deficit balance of payment. These problems can be represented in terms of quantity, in terms of numerical value. This is possible with help of statistics. तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल पुअर हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है. पॉवर्टी अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारे इंडिया की पुअर है और पॉवर्टी का रेट कितने परसेंट है. तो इस तरीके से किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव नंबर्स में एक्सप्रेस करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है. सेकेंड, हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ डेटा. Statistics helps in comparison of different economic issues. It helps in intersectoral comparison and it helps in intertemporal comparison. Intersectoral comparison means we can compare one sector from another sector. So we can compare between two sectors with help of statistics. For example, we can take three sectors, primary, secondary and tertiary sector, and with help of statistical data we can compare primary sector is performing better in GDP, secondary sector is performing better in GDP, or tertiary sector, which sector is performing better and which sector is performing poor. Intertemporal comparison means we can compare the same sector with respect to the different time period. We can compare the sector at independence period, after independence period and later independence period. So pre-independence, during independence and post-independence we can compare the different sectors. Establish cause and effect relationship. There are different economic variables which varies with respect to time and which is dependent on the different factors. And this cause and effect relationship can be analyzed with help of statistics. तो स्टैटिस्टिक्स कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में भी मदद करता है. जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना है, उस बायर्स की इनकम कितनी है, वेदर फैशन टेस्ट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो कितने परसेंट तक कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, इसकी डिग्री भी डिफाइन की जा सकती है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से. Economic forecasting. Forecasting means estimation about the future. Forecasting का मतलब प्रेजेंट डेटा को देख करके फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करना ही इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है.
With help of statistics, we can forecast the economic variables. With the help of the present growth rate of the population, we can estimate what will be the population in 2025, what will be population of India in 2030. With help of statistics, we can do other forecasting like prediction of the monsoon, production of the crops, what will be export and import, rise in export and import. These things can be used. These things can be forecasted with help of the use of statistics. स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का यूज़ आप क्रिकेट में भी देख सकते हो कि क्रिकेट में 10 इयर्स या 20 इयर्स मैच देखने के बाद वो लोग स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करते हैं कि प्रोजेक्टेड स्कोर टीम का आफ्टर 50 इयर्स कितना होगा। तो इसी को इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कहा जाता है कि एक प्रेजेंट डेटा को देख करके फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करना ही इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है। Policy formulation. There are different policies in economics like budgetary policy, fiscal policy, economic policy, monetary policy. So then these policy can be formulated with the help of statistics. बजट प्लानिंग करनी है या बजट पॉलिसी फार्मुलेट करनी है तो हम प्रीवियस ईयर के बजट को देख करके प्रेजेंट ईयर के बजट का एस्टिमेशन करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं कि प्रीवियस ईयर के बजट में हमने ग्रोथ का रेट इतना रखा था, इकोनॉमिक प्लान में हमने ग्रोथ का रेट इतना रखा था, तो इतने का बजट आया। अगर हम ग्रोथ का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं तो हमारा बजट कितने का आएगा। इस तरीके की पॉलिसी बनाने में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स बजट प्लानिंग के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब को भी कंपेयर करने में मदद करता है। Economic equilibrium. Economic equilibrium is the situation where producer or consumer do not want any change. Economic equilibrium जैसे profit maximization, satisfaction maximization, इन सबको आइडेंटिफाई करने में भी स्टैटिस्टिक्स का रोल है। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम लोग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हुए भी कुछ कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स में। इन कमियों को स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या कमियां हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। पहली जो लिमिटेशन है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स केवल उन्हीं फैक्ट्स के साथ डील करता है जिनको नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सके। जिन चीज़ों को नंबर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उनका मीन, मीडियन, मोड निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल। इट डज नॉट डील्स विथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाइक गुड, बैड, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिनका नंबर में रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसी प्रॉब्लम के साथ जिनको केवल क्वालिटी में रिप्रेजेंट किया जा सके, जिनका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल ना हो, उनके साथ डील नहीं करता। सेकेंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। Statistical analysis is possible only of the aggregates, not of the individual units. दूसरी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा केवल ग्रुप के साथ डील करता है, न कि इंडिविजुअल यूनिट्स। एग्रीगेट्स फैक्ट्स होंगे तो उनके साथ
उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है। जैसे दो या दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप उनका मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो उसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि एक इंडिविजुअल पर्सन का मार्क्स इकोनॉमिक्स में 25 है तो इस डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। रीजन बिकॉज इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल यूनिट है। तो आप इसका मीन भी फाइंड आउट करोगे तो भी 25 आएगा, मीडियन भी फाइंड आउट करोगे तो भी वो 25 ही रहेगा और ऐसा कुछ करना पॉसिबल नहीं होगा। देन यू कैन नॉट रीच टू द सर्टेन कंक्लूजन। So for reaching the certain conclusion, it is necessary that there should be aggregates of facts. Homogeneity of the data. तीसरी लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की है कि डेटा का होमोजीनियस होना कंपलसरी है। जैसे अगर आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक पर्सन की हाइट ले लो, दूसरे पर्सन का वेट ले लो, तीसरे पर्सन के मार्क्स ले लो, चौथे पर्सन का अटेंडेंस ले लो, तो ऐसे केस में उनका एवरेज फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये डेटा हेट्रोजीनियस है। किसी की एज है, किसी का वेट है, किसी की हाइट है और किसी के मार्क्स हैं, किसी के अटेंडेंस हैं। तो these data are not homogeneous. That's why the calculation of mean, median and mode are not possible, or statistical analysis is not possible. For this, if we are taking age, so we have to find out the age of 5%. If we are taking weight, so we have to take the data of the weight of the 5%, all 5%. If we are taking marks, so we have to take the marks of every 5%. तो अगर आप एक का डेटा एज ले रहे हो तो सारे लोगों का डेटा एज का ही लेना होगा। अगर वेट ले रहे हो तो सारे लोगों का डेटा वेट का ही होना चाहिए। इस वजह से डेटा की होमोजेनिटी होनी इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स जो होते हैं वो 100% ट्रू नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स केवल एक एवरेज फॉर्म में ट्रू होते हैं। जैसे अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया, हमने यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम लिया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिए, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, इन तीनों के डेटा के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन टॉपर्स की कैटेगरी में होंगे। लेकिन जब बोर्ड का फाइनल रिजल्ट आता है तो ऐसा भी होता है कि एक मीडियोकर बच्चा भी बेटर परफॉर्म कर रहा है और जिन लोगों को हमने एस्टिमेट किया था उसमें से एक दो का परफॉर्मेंस पुअर भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये केवल एक एवरेज फॉर्म में एक्यूरेट होते हैं। जैसे हमने ये स्टैटिस्टिकल डेटा को ये ले लिया कि 10 बच्चे हमारे 90 एबव आएंगे तो एज एन एवरेज 9 या 11 इस तरीके के बच्चे क्या होंगे 90% एंड एबव हो सकते हैं। तो दिस वे वी कैन से स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, नॉट 100%। विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी प्रूव्ड रॉन्ग। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स के लिए आपका रेफरेंस होना कंपलसरी है। बिना रेफरेंस के आपके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है क्योंकि इसके कोई एविडेंस नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स को पर्सन अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इस वजह से स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का देना ज़रूरी होता है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को किस सोर्स से कलेक्ट किया है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ अगर कोई नॉन एक्सपर्ट स्टैटिस्टिक्स का कर रहा है, उसको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकता है। जैसे एक केस स्टडी है जिसमें एक पर्सन को रिवर क्रॉस करना होता है और वो रिवर क्रॉस करने के लिए उसने क्या किया कि रिवर की डेप्थ मेजर करने के बाद उसने उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया।
फाइंड आउट करना था उसका मीडियन, हाइट डेप्थ कितनी है, और या उसको मोड फाइंड आउट करना था, उसने फाइंड आउट कर लिया मीन, और मीन जब फाइंड आउट किया तो उसकी डेप्थ जो आई वो उसकी हाइट से कम थी, तो उसको लगा कि वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, और वो रिवर क्रॉस करते करते डूब गया। रीज़न ये था कि उसको फाइंड आउट करना था हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द रिवर, जबकि उसने फाइंड आउट क्या किया, एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर, बिकॉज ही वॉज नॉट द एक्सपर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट को ही पता होता है कि किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा, इस वजह से कौन सा टूल सूटेबल होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हमेशा एक्सपर्ट करे तो ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन होगा। अगर कोई नॉन एक्सपर्ट कर रहा है तो उसके रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिकल डेटा को चेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं, जिसके कारण स्टैटिस्टिकल डेटा का मिसयूज़ भी किया जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन से ये पता करना है कि, या किसी पर्सन की इंक्वायरी करनी है कि उनकी फैमिली की इनकम का लेवल हाई है, तो आप अगर अगर उनसे पूछते हैं कि एक मैट्रिमोनियल साइट्स है जहाँ पे शादी के लिए सर्वे किया जा रहा है और आप अपनी इनकम को रिप्रेजेंट करिए, तो जैसे ही वो अपनी इनकम को रिप्रेजेंट करेगा वो हायर इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एक सर्वे आप कंडक्ट करिए और ये कहिए कि ये सर्वे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो सेम वही रिप्रेजेंटेशन, जो इनकम का हाई था वही लोग अपनी इनकम कम करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है, इसको हाई भी दिखाया जा सकता है और इसको लो भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ कम टू द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट। People do not rely on the data of statistics. स्टैटिस्टिक्स के डेटा पे पीपल रिलाई नहीं करते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के डेटा ट्रू 100% ट्रू नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए। स्टैटिस्टिक्स इज रेनबो ऑफ लाइज, यानी स्टैटिस्टिक्स झूठों का इंद्रधनुष है। स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, तो स्टैटिस्टिक्स के टिश्यूज जो हैं वो झूठ से मिलकर बने हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग एंड स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। तो स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी प्रूव किया जा सकता है और स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स आर लाइक ए क्ले of which you can make a god or devil as you please। स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक मिट्टी की तरह है, जिससे तुम अगर बनाना चाहो तो भगवान की भी मूर्ति बना सकते हो और डेविल की भी मूर्ति बना सकते हो। और ये स्टैटिस्टिक्स के लिए कहा गया कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। झूठ, भयंकर झूठ और सबसे बड़ा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स पे लोगों का भरोसा नहीं है, इस वजह से इसको इतना क्रिटिसाइज किया गया। रीजन क्या है, स्टैटिस्टिक्स पे लोगों का डिस्ट्रस्ट क्यों है? फर्स्ट, पर्पज ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आर डिफरेंट। पहला ये है कि स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंट पर्पज के लिए जो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से एक पर्पज के लिए लिया गया डेटा दूसरे पर्पज के लिए सूटेबल नहीं होता। जैसे हम लोग एक एग्जांपल अभी लिए थे कि अगर एक पर्सन से अगर मैट्रिमोनियल साइट से लिया गया डेटा कि वो उसकी इनकम क्या है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं होगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इनकम का लिया गया डेटा मैट्रिमोनियल के पर्पज से सूटेबल नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड फॉर प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन। स्टैटिस्टिकल डेटा को प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन के लिए अल्टर किया जा सकता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ यू पीपल। जैसे हम आप लोगों की क्लास ले रहे हैं,
क्लास लेते समय मेरा पर्पज़ ये है कि मैं ये शो करूं कि मेरी क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और इसके लिए सपोज़ कर लो कि हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसमें हमने क्वेश्चंस का लेवल लो रखा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के स्कोर हाई हो गए। स्टैटिस्टिक्स ने क्या प्रूव किया कि क्लास इज़ लर्निंग वेरी वेल, सो आई कैन ड्रॉ द प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन दैट माई क्लास इज लर्निंग वेल। लेकिन अगर मेरे साथ बायसनेस हो और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को ये शो करना है या बच्चों का जो स्टैंडर्ड है वो पुअर स्टैंडर्ड है, उनको और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, देन इन हाफ ईयरली एग्जाम आई विल पुट द क्वेश्चंस which are very difficult. That's why the result will be poor. So with the help of statistics we can draw any conclusion whatever the desired by the investigator. Lack of complete information. कभी कभी स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, जिसके कारण भी स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट पे रिलाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी हम एग्जांपल आपकी क्लास से लेना चाहेंगे। एक बच्चा है जिसने यूनिट 1, यूनिट 2, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए और उसका स्कोर आया। एक बच्चा ऐसा है जिसने एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट किए, उसने 2 एग्ज़ाम छोड़ दिए बीच के। 2 एग्ज़ाम बीच के छोड़ने के कारण वो एब्सेंट ट्रीट होगा। अगर हम ओवरऑल ग्रॉस नंबर पे उसका परसेंटेज फाइंड आउट करें तो उसका परसेंटेज कम होगा कंपेयर्ड टू दैट वन हु हैव अटेम्प्टेड ऑल द एग्जामिनेशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट होंगे उसका नंबर ज़्यादा आएगा या उसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा जिसने सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं, और उसकी टोटलिंग कम आएगी जिसने कुछ एग्ज़ाम छोड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो सारा एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस बच्चे की बीमारी है या किसी कारण से उसने पेपर छोड़ा है वो पढ़ने में मेरिटोरियस भी हो सकता है। तो अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स रॉन्ग हो सकते हैं और इस पे डिस्ट्रस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, पार्शियलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कभी कभी इन्वेस्टिगेटर की पार्शियलिटी भी होती है जिसके कारण स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रॉन्ग हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर की पार्शियलिटी, जैसे सपोज कर लो कि एक पर्सन है वो क्लास में डेली एक बच्चे को देख रहा है कि वो सिंसियर बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, डिसिप्लिन भी है, तो उसकी सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाती है, वो बायस्ड हो जाता है। और एक बच्चा जो नटोरियस है उसके साथ नेग्लिजेंसी का भाव या इग्नोरेंस का भाव जुड़ जाता है। तो जब कॉपीज इवेलुएट होती हैं तो जो पर्सन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है उसकी कॉपी पॉजिटिवली चेक होती है तो उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और जो पर्सन नटोरियस है उसके मार्क्स घटने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि उसकी कॉपीज नेगेटिवली चेक होती हैं। तो इन्वेस्टिगेटर कभी कभी पार्शियल या बायस्ड हो जाता है जिसके कारण स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, बायसनेस को अवॉइड करने के लिए क्लास में बच्चों के नेम की बजाय उनको फिक्सिशियस रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चा बायसनेस से फ्री हो रहे। So these are the different causes of distrust on statistics.